Hello friends, welcome back to the Hindu analysis. Today we will be covering the important stories of Hindu, important events across the world which are relevant from our examination perspective. I am Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu analysis for today, August 26th. Let's get started. Okay, so these are the shortlisted topics for today, or the shortlisted articles which are relevant from our examinations perspective. Government clears 9 names for Supreme Court judges. Probe agencies too hit by the lack of manpower. This is being remarked. This is a remark by Supreme Court. Cabinet clears NMP linked FDI proposal. Center raises fair price of sugarcane. Campaign introduced for 1 million soak pits in 100 days. Algeria cuts diplomatic ties with Morocco. Very important. Putin and Xi Jinping jointly agree to combat threats, and then the editorial article helping and hindering justice. So these are the top stories for today and we will understand them one by one. Okay, let's get started with the first one. The government clears 9 names for Supreme Court judges. Recently, Supreme Court Collegium gave 9 names, approved 9 names for being the Supreme Court judges to fill the vacancies for Supreme Court judges, and these 9 names have now been approved by the government also. The files have been sent to the president now, and if all goes right, next week these judges will be taking their oaths. They will be attending their swearing in ceremony. Okay, now what is special about these 9 judges? That out of these 9, 3 are women judges and one of them may be in line to become the future Chief Justice of India, and she will be the first female Chief Justice of India if that happens. The name is B.V. Nagaratna. Okay, we covered this in detail when Supreme Court Collegium approved the names. Okay, now here you can see Justice B.V. Nagaratna of Karnataka High Court may become the first female Chief Justice of India. Okay, now the list of 9 includes 8 High Court judges and 1 lawyer. Okay, interestingly, 9 judges are from 9 different states. Okay, so they've taken care of diversity also while choosing the list. Okay, so the Supreme Court Collegium which choose these names were headed by our Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramana. Okay, let's look at the next update. Now, Supreme Court has remarked that probe agencies like CBI are also hit by a crunch of manpower, just like judiciary. So just like our courts are not able to dispense justice to so many cases because of lack of manpower, because of vacancies in high court and subordinate courts. Similarly, CBI is also fighting, the various other probe agencies are also fighting with manpower crunch, and that is why they are not able to file charge sheets quickly, they are not able to investigate cases promptly, and that is why a lot of cases against legislators, okay, a lot of cases against MPs and MLAs of corruption and various other cases are pending. So Supreme Court has taken a note of the same, and they have said that a mechanism would soon put in place to monitor the progress of criminal trials against these legislators, and this might include special courts. So Supreme Court soon might come up with a mechanism where special courts may be opened up to expedite the proceedings in these cases, considering the importance of these cases for the public. Okay, so there is some interesting data mentioned in this article that currently high courts have 455 judicial vacancies as on August 1st. So high courts have how many judicial vacancies? 455. Okay, as on August 1st. So obviously if the seats remain vacant, we don't have enough number of judges for the kind of population we have, and that is why the process of justice gets delayed. Okay, let's look at the third important news. All these are front page articles only. Cabinet clears 15,000 crore NMP linked FDI proposal. Now, basically, there is this company called Encourage Infrastructure Investment Holding.
ठीक है, इस कंपनी में क्या खास बात है, दिस कंपनी is basically an investment fund which will invest into various infrastructure projects, and the government has approved an investment of a foreign investment of 15,000 crore in this particular company. Okay, a foreign direct investment of 15,000 crore has been approved. And why it's an important development? Because government has recently announced a national monetization plan, right? Okay, national monetization pipeline, where the government is trying to monetize its infrastructure, monetize various assets like highways, pipelines, bridges, ports, railway stations, airports. Okay, so the idea now is that, okay, probably, you know, let's say funds like these will invest in various infrastructure projects and will generate revenue for the government. And since this is foreign money, we are basically attracting foreign investment for our infrastructure projects. So this is supposed to provide a significant boost to the recently announced national monetization pipeline. That's why it has become a front page news. Okay, so FDI proposal entailing an investment of 15,000 crore in a company called Encourage Infrastructure Investment Holding has been approved, and it is supposed to provide a boost to the national monetization pipeline. Okay. Then something to cheer about for the farmers. Central government has raised the fair price of sugarcane, which means that sugar mills have to provide an additional ₹5 per quintal to farmers. Okay, and the government has not increased the minimum support price which the government basically offers to these sugar mills. तो sugar mills को अपना रेट, अपना जो भी सामान है वो सेम रेट पे बेचना होगा गवर्नमेंट को, और ज़्यादा रेट पे ख़रीदना होगा फार्मर्स से. ठीक है, तो ये अभी पंजाब गवर्नमेंट में बेसिकली स्टेट पॉलिटिक्स थोड़ा चल रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुगर केन का प्राइस थोड़ा हाई कर लिया फार्मर्स से, जो पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही थी. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं किया. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये इनिशिएटिव लेकर के थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया है. तो दे हैव इंक्रीज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स मस्ट पे टू शुगर केन फार्मर्स बाय ₹5 अ क्विंटल. ठीक है, तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ गया है. अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, ₹290 अ क्विंटल सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, लेकिन शुगर मिल्स का क्या डिमांड था कि ठीक है अब हमारी कॉस्ट आपने बढ़ा दी है, हम फार्मर्स को ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप हमें ज़्यादा पे करो. बट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऑलरेडी तुम लोग काफ़ी बेनिफिट में हो, हमने आपको अलग कई तरह की अलग अलग रिबेट्स दे दी हैं, तो नाउ वी कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस फॉर यू. बिकॉज इफ वी इंक्रीज द प्राइस फॉर यू, अल्टीमेटली द रिटेल प्राइस फॉर कंज्यूमर इंक्रीजेस. आपका और हमारा चीनी का भाव बढ़ जाता है, एंड गवर्नमेंट डिडंट वांट दैट. सो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को कहा कि वी विल नॉट इंक्रीज द प्राइस. नाउ जल शक्ति मिनिस्ट्री, हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, उन्होंने एक कैंपेन अभी लॉन्च किया, सुजलम कैंपेन. सुजलम कैंपेन इज बेसिकली टू मैनेज ग्रे वाटर, वेस्ट वाटर इन अर्बन एरियाज. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि इवन अर्बन एंड रूरल बोथ एरियाज, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि हम 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 लाख सोक पिट्स बनाए 100 डेज में. व्हाट आर सोक पिट्स? बेसिकली गड्ढे एक तरीके से होते हैं जहाँ से जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर का मतलब क्या होता है, हमारे जो किचन का पानी है, सिंक का पानी है, ठीक है, घरों में आपके वॉशिंग मशीन से निकलने वाला ड्रेन पानी है, जिसमें कोई फीकल कंटेमिनेशन नहीं हो, यानी आपका जो टॉयलेट का पानी नहीं, बट बाकी जो पानी है जिसमें कोई फीकल कंटेमिनेशन ना हो, ये जो पानी है इसको ग्राउंड वाटर में मिला दिया जाता है. ये एक तरीके से गड्ढे बना दिए जाते हैं, सोक पिट्स, जिनमें जाकर के पानी जो है वो नीचे अंडरग्राउंड आपके सॉइल में चला जाता है. इसे सोक पिट कॉन्सेप्ट कहा जाता है. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें ग्रे वाटर को मैनेज करना चाहिए, और उसके लिए हमें अगले 100 दिनों में अक्रॉस इंडिया 10 लाख ऐसे सोक पिट्स बना देने चाहिए. ठीक है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री इज लॉन्च. इस स्कीम का नाम क्या दिया है? सुजलम कैंपेन. ठीक है, सुजलम कैंपेन टू क्रिएट 1 मिलियन सोक पिट्स अक्रॉस द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 100 डेज टू हेल्प मैनेज ग्रे वाटर एंड प्रिवेंट द क्लॉगिंग ऑफ वाटर बॉडीज. ठीक है, ग्रे वाटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो दिस इज अ इनिशिएटिव. तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, अपने माइंड में क्वेश्चंस देखिए, सोचिए, आपसे पूछा क्या जा सकता है, कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है, ठीक है, क्या डेडलाइन है, कितने सोकपिट्स बनाने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, चलिए
अब देखिए आज का मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट ये है, अल्जीरिया कट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद मोरक्को। ठीक है, तो अल्जीरिया और मोरक्को दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं एंड अल्जीरिया फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन स्पोक्स पर्सन हैज सेड दैट वी हैव कट डिप्लोमेटिक टाइज विद मोरक्को, दैट मीन्स वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद मोरक्को। हमारे कोई डिप्लोमेट, हमारे कोई एम्बेसडर जो है वो मोरक्को के ऑफिशियल से बात नहीं करेंगे। अल्जीरिया और मोरक्को के समय से टेंशन चल रहा है। जो टेंशन चल रहा है वो उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ वेस्टर्न सहारा टेरिटरी। ठीक है, वेस्टर्न सहारा टेरिटरी इज़ इन कंट्रोल ऑफ मोरक्को, बट अल्जीरिया सपोर्ट्स, तो वहाँ पर मोरक्को और एक दूसरा ग्रुप है सहरावी ग्रुप करके, तो सहरावी ग्रुप को बैक अल्जीरिया करता है और मोरक्को इज़ फाइटिंग विद सहरावी ग्रुप फॉर द कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा एक टेरिटरी है जो पहले स्पेन के कंट्रोल में थी। जब स्पेन ने उसे छोड़ा तो उसे मोरक्को और मॉरिशनिया को दिया, फिर सहरावी ग्रुप ने बीच में रिबेल किया, मॉरिशनिया ने कंट्रोल छोड़ दिया। तो देयर इज़ राइट नाउ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरक्को एंड अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा, एंड देन बेसिकली बोथ दीज कंट्रीज सपोर्ट द ऑपोजिशन इन ईच कंट्री। ठीक है, थ्रू प्रॉक्सीज। सो दैट इज़ वाई ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्जैकर्बेट हो गया है। फिर अभी हाल ही में अल्जीरिया ने आरोप लगाया है कि जो फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, दिस इज डेडली फॉरेस्ट फायर्स दैट रेवेज द कंट्रीज नॉर्थ वाज कॉज्ड बाय मोरक्को। तो अल्जीरिया कहता है कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट फायर्स हुई थी उसमें कहीं ना कहीं मोरक्को का हाथ था, एंड दैट इज वाई वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू आवर फॉरेन रिलेशंस विद मोरक्को। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। नाउ ऑल ऑफ यू माइट have heard about Algeria and Morocco. Maybe you also know that these are African countries, but you may not know that where exactly you can see them in Africa. तो ये हमारा मैप सेक्शन आ जाता है यहाँ पर। Let's look at both these countries on the world map. तो देखो यहाँ आप अफ्रीका को देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ ऊपर आपका यूरोप, पोर्चुगल, फिर यहाँ मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। दिस इज नॉर्दर्न अफ्रीका। अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर, टॉप मोस्ट अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लेफ्ट में वेस्टर्न मोस्ट कंट्रीज में मोरक्को है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपको मोरक्को दिखेगा। मोरक्को के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। ठीक है, मोरक्को के साउथ में और अल्जीरिया के अगर आप देखें तो साउथ वेस्ट में वेस्टर्न सहारा पड़ता है, और वेस्टर्न सहारा को लेकर के ही सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा। मैं आपको और एनकरेज करूंगा कि आप अपने गूगल इमेजेस पे जाकर के अगर आप टाइप करेंगे अल्जीरिया एंड मोरक्को ऑन वर्ल्ड मैप, आपको ये इमेजेस दिखाई दे जाएंगी। सो लुक एट इट, अपना एटलस यूज़ करें या गूगल यूज़ करें और ट्राई टू लोकेट दीज कंट्रीज, यू विल लर्न मोर अबाउट देम। ठीक है, चलिए, ये अब एक आज के न्यूज़पेपर में अपडेट था कि पुतिन एंड शी जिनपिंग, हु इज शी जिनपिंग एंड हु इज व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, शी जिनपिंग इज अगेन द प्रीमियर ऑफ चाइना। बोथ ऑफ देम अग्री टू जॉइंटली कॉम्बैट द थ्रेट। अभी पहली बात तो दे देमसेल्व्स आर थ्रेट टू हाफ ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, अभी व्लादिमीर, कल के न्यूज़पेपर में हमने बात की थी कि व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ कि अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उनको लेकर के। और आज के न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट में कॉन्वर्सेशन हुआ अफगानिस्तान के हालातों को लेकर के। तो पूरी दुनिया में बातचीत चल रही है कि अफगानिस्तान को लेकर के क्या पॉलिसी रहेगी, रशिया और चाइना मिलके क्या करेंगे, रशिया और इंडिया मिलके क्या करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंस धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब रशिया और इंडिया का एंगल तो कल हमने डिस्कस किया था, रशिया और चाइना का एंगल क्या है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस रिलेटेशन में है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी समिट अगले महीने तजाकिस्तान में होने वाली है। देखो, कल हमने बात की थी कि अगले महीने ब्रिक्स की भी 13th ब्रिक्स समिट होने वाली है, जिसकी चेयर इंडिया के पास है। उसी तरह से SCO ग्रुप की भी समिट अगले महीने होने वाली है, जो तजाकिस्तान में होने वाली है। और SCO ग्रुप के बारे में थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये ग्रुप है, ये बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में बना था। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो जो इनिशियल मेंबर्स थे, इंडिया और पाकिस्तान बाद में ऐड हुए। पहले जो 6 मेंबर्स थे वो थे चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, बाद में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया। आज की तारीख में 8 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? शंघाई, चाइना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, 2001 में ये ग्रुप बना था, ठीक है, और इस ग्रुप की भी मीटिंग अगले महीने है, कहाँ है, तजिकिस्तान में, लीडर्स समिट, ठीक है। तो एससीओ मीटिंग में इस बात को और उठाया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल क्या है कि दो, रशिया इज बैकिंग तालिबान, ठीक है, रशिया, चाइना और पाकिस्तान 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने तालिबान के लिए अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया है। बट रशिया ने साथ में एक और भी कहा है कि तालिबान से हमें एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि तालिबान से डर के अफगानिस्तान के जो लोग भाग रहे हैं वो अल्टीमेटली भाग कहाँ रहे हैं, जो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सब रशिया की नेबरिंग कंट्रीज है जहां पर ये अफगान लोग भाग रहे हैं, विच माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर रशिया ऑल्सो, ठीक है। तो इस बात पे मुझे एक बहुत फेमस हिलैरी क्लिंटन का कोट याद आ गया कि हिलैरी क्लिंटन ने एक बार पाकिस्तान में टेररिस्ट के बारे में, टेररिस्ट अटैक्स के बारे में कुछ कहा था कि इफ़ यू रेज स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम नॉट टू बाइट यू, ठीक है। तो माइट बी ट्रू फॉर रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान टुडे, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये आज के एडिटोरियल में देखते हैं, हेल्पिंग एंड हिंडरिंग जस्टिस। देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इनिशियली जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ खास काम का नहीं होगा, बट एज आई रेड इट कम्प्लीटली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा। ये आर्टिकल किस बारे में, ये बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। हमारे देश में जुडिशरी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है या हुआ है वो कितना यूज़फुल रहा है, कितना प्रैक्टिकल हो सकता है, आगे क्या चैलेंजेस हैं, वो सब चीज़ों के लेकर ये बात करता है। तो ये कहता है कि जब कोविड का टाइम था, जब पेंडेमिक का टाइम था, लोग अपने घरों में हो गए थे, तब अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ई फाइलिंग प्रोसेस अलाउ किया था कि आप अपनी जो भी पिटिशंस हैं वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में इंट्रोड्यूस की। इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक कोर्ट्स बिगेन यूजिंग फैसिलिटीज लाइक ई फाइलिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रेफरेंसिंग। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस उन्होंने किए जो कोविड टाइम्स में, पेंडेमिक टाइम्स में जो भी आपका लीगल बिजनेस है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे एफिशिएंटली चलाने के लिए ये इनिशिएटिव्स लेकर के आए गए। बट और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट्स नॉट जस्ट कि पेंडेमिक टल जाए, कि ठीक है जब तक कोविड का काम चल रहा है तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट ऑल्सो गवर्नमेंट को एक उम्मीद लगी कि इससे हम बैकलॉग सुलझा सकेंगे, ज़्यादा जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटा सकेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अब एक प्रिजनर है, उसको आपको लेकर आने में कम्यूट में टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, आप वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दो, बात करवा दो उससे, ठीक है। इस तरह के इनिशिएटिव्स लेकर के आए, तो ऐसा लगा कि थोड़ा प्रोसेस को हम जल्दबाजी एक्सपेडाइट कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। बट एविडेंस हमें क्या बताता है, जो अगर हमने डेटा देखे पेंडेमिक के आसपास, तो एविडेंस ही बताता है कि जुडिशरीज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड हैज लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। अगर आप डेटा देखेंगे इस दौरान तो आपको पता चलेगा कि जुडिशरी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय खराब हो गया, ठीक है। द पेंडेंसी रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, मतलब जो पेंडिंग केसेस थे वो ऑल टाइम हाई पर थे पेंडेमिक के दौरान, जबकि आपने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, जबकि आपने चीज़ों को तेज करने की कोशिश की थी, फास्ट करने की कोशिश की थी, स्टिल जो पेंडिंग केसेस थे वो ऑल टाइम हाई पे थे, स्टिल जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं रही थी। और उसकी वजह क्या थी, ठीक है। अब ये कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने रेस किए। वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन क्रिमिनल केसेज एंड नीदर शॉर्टन ट्रायल्स नॉर रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल अवेटिंग ट्रायल। उन्होंने कहा जब आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंट्रोड्यूस की तो ट्रायल का नंबर कम हो जाना चाहिए था, ठीक है। जो लोगों को ट्रायल के लिए वेट करना पड़ रहा है उनका नंबर कम हो जाना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। तो हमें ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर अनइवन डिजिटल एक्सेस, उन्होंने कहा कि अब आप शहरों में देखो तो लोगों के पास इंटरनेट है, पीसीज हैं, ठीक है। गांव में लोगों तक मोबाइल फ़ोन पहुंच चुका है, बट स्टिल लोगों तक इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे, सारा प्रोसेस ई फाइलिंग कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा देंगे, वो चीज़ अर्बन एरियाज़ में पॉसिबल है, गाँव में वो डिजिटल डिवाइड वाला प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर लॉयर्स, ठीक है, अर्बन लॉयर्स में बी कंफर्टेबल इन ऑल दीज थिंग्स, बट गांव में जो लॉयर बैठा है, एक तो वो टेक्नो सेवी नहीं है, दूसरी बात कि उसके पास उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो एक 25 GB की फाइल डाउनलोड कर लेगा, नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी नो मैटर हाउ एडवांस्ड कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर जजेस। उनका आप टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हो पर फैसला तो जज ही देगा ना, और जब तक आप जजेस की वैकेंसी फुलफिल नहीं करोगे तब तक टेक्नोलॉजी आपको
एक्सपेडाइटेड जस्टिस नहीं दे सकती। हो सकता है जजेस का काम जो 4 दिन में होता है वो 3 दिन में हो जाए, बट फिर भी 2 जज का काम 2 जज ही कर सकते हैं, 1 जज तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से टेक्नोलॉजी उतना हमें आउटपुट नहीं दे रही है जितना हमने जुडिशरी में एक्सपेक्ट किया था। सो दिस इज व्हाई द आर्टिकल इज कॉल्ड हेल्पिंग जस्टिस एंड हिंडरिंग जस्टिस, हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प जस्टिस एंड व्हाई टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली हिंडरिंग जस्टिस। ये थोड़ा एक्सप्लेन किया। इट्स अ गुड आर्टिकल, नाइस आर्टिकल, जो आज के द हिंदू में है, ओपैड पेज पर है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इट्स अ नाइस आर्टिकल, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल हम बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? कल मैंने आपको बताया था ब्रिक्स बैंक के हेडक्वार्टर्स शंघाई में है, और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। आई थिंक प्रीति और आंचल ने आंसर किया है, और दोनों के आंसर्स बिल्कुल सही है। फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, मनीला फिलीपींस। सो वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, एंड कीप आंसरिंग। अब आज का जो मेरा सवाल है, आज हमने बात की जुडिशियल सिस्टम के बारे में। चलिए आज क्वेश्चन, अच्छा SCO के बारे में हमने बात की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हमने देखा शंघाई चाइना में। मैं आपसे एक दूसरे इंटरनेशनल ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आपको ये बताना है कि आसियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। जैसे SCO के हेडक्वार्टर्स शंघाई में है, वैसे आपको ये बताना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। अगेन यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, and with this I will wrap up the session for today. I'll see you again tomorrow with another interesting edition for the Hindu analysis. Till then, keep reading. Thank you. Goodbye.